गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं सभी? एंड आई होप यू आर फाइन। देखो हमने कहाँ तक कर लिया था, हमने 3 पैरे कर लिए थे यहाँ तक कि टेक मी फ्रॉम देयर। तो हम यहाँ पर आए हुए हैं मंथ्स पास्ट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta. When Gandhi arrived, he waited till Gandhi was free. When the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar, there Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. So they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? अब देखो महीनों बीत जाते हैं और जो गांधी का एक सम्मेलन होने वाला होता है अब कलकत्ता में, हाँ कलकत्ता में होने वाला होता है। तो वहाँ पर ये जो शुक्ला है वो वहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है। और जब तक गांधी जी फिनिश होते हैं अपने भाषण से पूरा करते हैं और तब तक वो उसका इंतज़ार करता है। और जैसे ही वो करते हैं, भाषण समाप्त करते हैं, तभी वो उसके साथ साथ हो लेता है। और फिर वो वहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं पटना के लिए। तो फिर वो पटना बिहार में पहुँच जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जाते हैं, जो कि लॉयर है। तो लॉयर के पास जाते हैं, तो वहाँ पे देखा, जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो लॉयर है, वो वहाँ पर घर पर नहीं होते हैं। तो उनके सर्वेंट्स होते हैं, नौकर होते हैं। और नौकर गांधी को है ना एक दूसरा जो पीजेंट है, जो किसान है, वो समझते हैं और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और उसे पीने के लिए पानी भी नहीं देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, और वो उसको क्या समझते हैं कि ये अनटचेबल है, यानी अछूत है। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर and which was en route to Champaran to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of impairing. He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shantiniketan school. The train arrived in midnight, 15 April 1917. Kripalani was waiting at the station with a large body of students. Gandhi stayed there for 2 days in the home of a professor Malkani, a teacher in a government school. अब देखो फिर उसके बाद पटना के बाद गांधी जी किस चीज़ का निर्णय लेते हैं, मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लेते हैं। तो फिर वो मुजफ्फरपुर जाते हैं अपने दोस्त कृपलानी से मिलने के लिए, ठीक है, जो कि प्रोफेसर है। और जब वो स्टेशन पर पहुंचते हैं, वो आधी रात को स्टेशन पर पहुंचते हैं 15 अप्रैल 1917 को, ठीक है। तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे उनके जो है वो स्टूडेंट्स खड़े हैं, ठीक है। वो स्टूडेंट्स के साथ गांधी जी का स्वागत करते हैं। और गांधी जी एक मलकानी नाम का एक गवर्नमेंट टीचर होता है, उसके घर में ठहरते हैं, ठीक है। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. Sharecroppers from Champaran began to arrive on foot and by conveyance to see their champion. Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasant groups in court, and they told him about their cases and reported the size of their fees. Gandhi chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts
Taking such cases to the courts does little good. Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. The real relief for them is to be free from fear. देखो जैसे ही वो चंपारण पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनका जो स्वागत करते हैं और वो वहाँ के जो लॉयर्स होते हैं वो उनको डांट देते हैं कि भाई तुम उनको जो किसानों से इतना पैसा मत लिया करो, क्योंकि जैसे मान लीजिए जो अंग्रेज़ होते हैं, अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अंग्रेज़ ना इनको लूट रहे थे, ठीक है, किसानों को लूट रहे थे, क्योंकि वो जितनी फसल उगाते थे, जैसे नील की फसल उगाते थे तो उसका 15% जो नील है वो इंग्लिश सरकार को देते थे। तो ये उनके साथ अत्याचार हो रहा था, तो उसने वहाँ के वकीलों को डांटा कि भाई तुम किसानों से इतनी ज़्यादा फीस मत चार्ज करो, ठीक है, क्योंकि उनकी और वहाँ और कोर्ट में जाना भी मतलब बकवास होता था, यानी उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि जो असली जो बीमारी थी ना किसानों की वो थी उनका डर, वो डरे हुए थे बहुत ज़्यादा बेचारे, ठीक है। So most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. The chief commercial crop was indigo. The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by a long-term contract. अब देखो क्या हो रहा था कि जो किसान थे ना उनको अब ये कहा गया कि भाई तुम है ना अपनी 50% आप 50% जो ज़मीन है ना उस पर खेती करो, ठीक है, 50% ज़मीन पर खेती करो और सारी की सारी फसल है वो उनको इंग्लिश लोगों को दे दो, और ये तो सरासर उनके साथ अत्याचार हो रहा था, ठीक है। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न द जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. The sharecropping arrangement was irksome to the peasants, and many signed willingly. Those who resisted engaged lawyers. The landlords hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed, and they wanted their money back. अब क्या हुआ कि जो जर्मनी में ना सिंथेटिक इंडिगो तैयार कर लिया जर्मनी ने। सिंथेटिक क्या होता है, नकली को बोलते हैं, नकली। अब देखो अब जो नकली नील है तो अब क्या होगा, अब किसानों का नील नहीं बिकेगा। अब वो किसानों का नील नहीं बिकेगा तो वो अपना जो कर है वो कर इंग्लिश लोगों को कैसे चुकाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, इंग्लिश लोगों ने क्या किया कि जो किसान उनकी बात नहीं मानते थे उन्होंने उनके पास अपने गुंडे भेज दिए, और जो लोग और कुछ किसानों ने तो उनके खिलाफ है ना केस भी कर दिया था, ठीक है। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी समय है ना गांधी जी है ना चंपारण में आ गए। He began by trying to get the facts. First, he visited the secretary of British Landlords Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider. Gandhi answered with he was no outsider. Next, Gandhi called on the British official commissioner of the 3/4 division in which the Champaran district lay. The commissioner, Gandhi reports, proceeded to bully me and advised me to forthwith to leave 3/4. फिर उसके बाद क्या होगी, उसके बाद जो गांधी जी है वो 3/4 चले गए, वहाँ पर ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिले, और उसने क्या किया, उस ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, ठीक है, और उनको जाने के लिए कहा। गांधी डिड नॉट लिव, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू Motihari, the capital of Champaran. Several lawyers accompanied him at the railway station. A vast multitude greeted Gandhi. He went to a house and, using it as headquarters, continued his investigations. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. Gandhi decided to go and see the next morning.
He started out on the back of an elephant. He had not proceeded far when the police superintendent's messengers overtook him and ordered him to return to town in his carriage. Gandhi complied. The messenger drove Gandhi home, and where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. Gandhi signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. अब क्या होता है कि जो गांधी जी है वो कहाँ पर चले जाते हैं, वो मोतीहारी में मोतीहारी चले जाते हैं, जो कि चंपारण की राजधानी है, ठीक है। और उनके साथ बहुत सारे वकील भी होते हैं, और जैसे ही वो मोतीहारी पहुँचते हैं तो वहाँ पर स्टेशन पर इनका बहुत सारे लोग स्वागत करते हैं, और वो अपना जो इन्वेस्टिगेशन है, वो जांच है जो उसको वो आगे बढ़ाने के लिए मोतीहारी जाते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो पुलिस होती है, पुलिस का जो मैसेंजर होता है वो उसको महात्मा गांधी को वहाँ रास्ते में रोक लेता है और कहता है कि आप आगे नहीं जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक यात्रा शुरू की थी हाथी पे बैठकर गांधी जी ने, तो वहाँ पर मैसेंजर उनको रोक देता है कि आप आगे नहीं जा सकते। तो फिर गांधी जी कहते हैं कि मैं आपकी बात नहीं मानता। तो फिर इसमें क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। तो इसके बाद क्या होता है कि गांधी को एक समन आता है कि भाई गांधी जी को कोर्ट में पेश होना है, क्योंकि उन्होंने एक लॉ तोड़ा है। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड थैंक यू सो मच। बाय।